ارے عزیز دوستوں، ماں بہنوں، ایک مرتبہ یہ قرآنی دعا کو پڑھنے اور سننے کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ یقین کر کے تو دیکھیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، تو پہلے ہم آپ کو ایک مرتبہ اس دعا کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، آخر میں اس کے فائدے بتاتے ہیں۔ آپ کمنٹ میں پیارا سا آمین ضرور لکھیں، آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هو إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى
आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे अजीज दोस्तों, माँ बहनों, आपने एक मरतबा इस वीडियो के अंदर ये कुरानी दुआ और दुरूद इब्राहीम की तिलावत को सुन लिया है। पहली बात, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आप कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानते हैं, ना जाने कितने मर्द मुसलमान औरतें ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ना नहीं जानते हैं, बड़े अफसोस की बात है। तो उन सब से मैं ये गुजारिश करता हूं कि दुनिया से जाने से पहले पहले कुरान को पढ़ना सीख लें तजवीद के साथ। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो आप शर्माए नहीं, बल्कि कुरान को पढ़ना सीखें। अब उन्हें पढ़ना भी नहीं आता है, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद आपको इस वीडियो के अंदर एक मरतबा ये कुरानी दुआ और दुरूद इब्राहीम की तिलावत करके सुनाई है। आप इसे सिर्फ एक मरतबा सुन ही लें, दिन में कभी भी। जितने फायदे पढ़ने के हैं उतने ही फायदे सुनने के हैं, क्योंकि कुरान का पढ़ना और सुनना दोनों इबादत होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप किसी चीज की दुकान करते हैं, आपकी कोई शॉप है, चाहे कपड़े की या फिर लकड़ी की या फिर कॉस्मेटिक, किसी भी चीज की दुकान है आपकी, अगर उसमें खैर बरकत नहीं हो रही है या फिर ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, आपने कहीं पर नई नई दुकान खोली या फिर वहां पर आपकी दुकान की पहचान नहीं है, आपको घाटा हो रहा है, तो मेरे कहने से आप जब दुकान पर जाया करें, सुबह में नमाज फजर को अदा करके जैसे ही ताला अपनी दुकान का खोलें, तो आपको सबसे पहले इस कुरानी दुआ की तिलावत को बजा देना है। एक मरतबा इस वीडियो के अंदर की जो तिलावत है, ये कुरानी दुआ और दुरूद इब्राहीम को बजा कर देखें, अच्छी और सच्ची नियत के साथ, यकीन कामिल रखकर। सारी बात नियत पर होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो जाहिर सी बात है, जैसी आप नियत रखेंगे वैसा आपको सिला मिलेगा। अगर आप सबने इस अमल को जारी रखा, इस वजीफे को रोजाना एक मरतबा सुनते ही रहे, इस कुरानी दुआ की तिलावत को सुनते रहे अपनी दुकान पर, तो इंशाअल्लाह आपकी दुकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दुआ फॉर दुकान, यानी दुकान के लिए है दुआ। और जिस जगह पर कुरान की तिलावत की जाती है या फिर कुरान की तिलावत को सुना जाता है, तो उस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत रहमतों का नुज़ूल अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, कुरान बरकत वाली किताब है, बस आपको नमाजों की पाबंदी करना है, नमाज को नहीं छोड़ना है। मैं आप सब से हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि नमाजों का ख्याल रखें और एक मरतबा इस कुरानी दुआ को सुन ही लें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। अगर आप अपने घर पर इस सूरह को, इस तिलावत को बजा देंगे, तो आपके घर में बेशुमार बरकतें रहमतें आएंगी। जिस जगह पर ये कुरान की तिलावत सुनेंगे, उस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत की बारिशें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो आप सब इस बात पर अमल जरूर करें। चलिए आप सबके लिए अब दुआ करते हैं। मौलाए करीम, हम सभी ने इस वीडियो के अंदर एक मरतबा ये कुरानी दुआ और दुरूद इब्राहीम की तिलावत को सुना है। मौला, इसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। हमारे घर में, मकान में, दुकान में, कारोबार में, खेत खलियान में बेशुमार बरकत और रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। हम सभी की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। मौलाए करीम, जिन्होंने कुरान की इस तिलावत को सुना है, मौला मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मौला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, तमाम बीमारियों को दूर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।